the government is spending only very little amount, less than 1% in R&D in the agriculture sector. Because of low water pricing, farmers are reluctant to use water saving technology because they don't feel any benefit. एक्सपोर्ट प्राइस है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसने बहुत सारे बर्डन्स जो हैं वो गवर्नमेंट के शोल्डर्स पे भी क्रिएट किए हैं। अगर अपने ही एवरेज फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है उनको हम अपने ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स तक के बराबर ले जाएं तो हम 1722 अरब रुपए जो है वो इस सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। 17,000 के करीब सरकारी घर हैं इस्लामाबाद में। 1300 एकड़ के करीब एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये वो जमीन है जो कि शहरों के दरमियान में है और जिसका आप कुछ कर नहीं सकते। 85% से ज्यादा जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है that remains financially excluded. We have a very, very complex taxation system. हमने इतनी ढेरों से एंटिटीज बना दी गई हैं, उनको खत्म करने की जरूरत है। एक इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत है। आईपीपीएस का जो मोड है इसको खत्म किया जाए और मार्केट कंपेटिटिव मार्केट की तरफ जाए। सारी चीजें जो है मार्केट में डिटरमिन होनी चाहिए। आज का जो हमारा ये वाला सेशन है ये मार्केट से रिलेटेड है। पिछले 5 साल के अंदर पाइड ने इनॉर्मसली मार्केट्स के ऊपर काम किया अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ डॉक्टर नदीम, जिसमें हमने और आज के सेशन में हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट सेलेक्ट की बात करने के लिए, उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट पे। एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट एंड आउटपुट मार्केट, जिसपे डॉक्टर उबैद और डॉक्टर फैसल बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे स्टेट कैप्चर रियल एस्टेट मार्केट, उस असबर बात करेंगे और उसके बाद फिर ई कॉमर्स एंड डोमेस्टिक कॉमर्स पे अब्बास बात करेंगे। तो without wasting any time, I would request my panelists to discuss about the today's markets, which we are. The first of all, I will ask Dr. Ubaid. पिछले 5 साल में जो पाइड में एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट्स के ऊपर जो रिसर्च हुई उसकी की है और इश्यूज को हम किस तरह से जो पाइड का थीसिस है हम किस तरह से हमने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट की। इन को अगर हम कर लें तो हम एग्रीकल्चर मार्केट्स के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर उबैद। Thank you very much. So let me talk about the input market in agriculture sector. So among the input market, I mean, there are 4 major things I think, markets, I think. One is R&D, research and development, and second is seed market, and third is water market, and fourth is fertilizer market, about which I will talk briefly. So when we are talking about the R&D, so I think the government is spending only very little amount, less than 1% in R&D in the agriculture sector. And that's why the outcome which is coming is not very effective to increase the productivity. So within last 20 years, I mean, there are, I mean, more than 1,000 varieties has been released for different crops. But if we look the productivity over the time, the growth is, I mean, varying just between 1% and between 1.5% for major crops. For minor crops, the yield growth is even negative. So the reason, I mean, why it is happening, because we did not engage the private sector in that. And now I'm coming to the next step, that why private sector is not coming in, basically. So when we are talking about the seed sector, the federal seed certification has, I mean, over-regulated the seed sector, because if you are releasing any variety, you need to get it approved. At least it takes 3 years, and private sector cannot wait for 3 years to harvest the benefit of his investment. So that's why in Pakistan, I mean, almost the investment in the private sector of seed sector is almost negligible. And that's why, I mean, this is the reason that we have, I mean, bottleneck. We have to privatize, I mean, we have to open up the seed market. What is the way forward, basically? What we need to do? I mean, everyone can sell any seed with the brand and with the proper labeling. So that labeling will pay you back, because in the market, the certification is not being sold, or I mean, consumers are or farmers are not willing to pay anything for the certification, but they are willing to pay for the brand. Once they know that this seed is released by this brand, and they are ready to pay high prices for that. It means this clearly indicates that we need to go for brands and proper labeling, and the seed certification, the role of federal seed certification need to be eliminated completely. This will not only help to invest
attract the private investment, but also boost the productivity. So this you can see in case of maize. I mean, clearly, I mean, when we liberalize the seed of maize, and within just last 20 years, the seed productivity has increased from 2 ton to 10 ton, almost varying between 9.5 and 10, and which is we are par with the international, I mean, productivity. So now let's move to the, I mean, here again, I mean, part stand is that we need to liberalize the market and we open up the seed market so that we can attract the private sector. And now let us move to the, I mean, the water market. In water market, we are just charging Abiana from the farmers, and which is amounting to 33 billion per annum. If we, I mean, value that water at the opportunity cost we have taken if we have extracted the same water from the ground through 2 wells, so its value is more than 1,000 billion. So you can imagine. So just we are charging 33 billion, but its actual cost is more than 1,000 billion per annum. So because of low water pricing, farmers are reluctant to use water saving technology because they don't feel any benefit. Because when water is so cheap, why they need to adopt water saving technology? So again, we are here suggesting that government really need to fix the water pricing properly so that we can preserve this precious resource for future generation, and we can also increase its productivity. And now next market is fertilizer basically. The government is giving indirect subsidy on fertilizer because natural gas is the key input in urea, and government is spending every year 200 billion rupees on indirect subsidy on fertilizer, which is going in the pockets of the producers. So we have estimated that if government has completely eliminated subsidy and farmers completely transferred that subsidy to the consumer, then how much consumer will be penalized? We have estimated that a family of 5 persons will have to pay only additional 800 rupees per annum, which is nothing. So, I mean, if we have completely eliminated that fertilizer subsidy, there will be not additional burden on consumer at all. Even farmers are transferring that burden to the consumer completely. So again, we are suggesting that government really need to eliminate the subsidy, and that money should be diverted toward R&D. So thank you very much. Thank you so much, Dr. Ubaid. Very insightful discussion. Dr. Ubaid has talked about key inputs in the agriculture sector. My next panelist is Dr. Faisal Ali. He will be talking about the issues in the output market of the agriculture sector. Over to Dr. Faisal. थैंक यू डॉक्टर सुमित। मैं अपने मार्केट के हवाले से बात शुरू करने से पहले दो तीन बातें और भी वाज़ेह करता चलूं कि पाइट ने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट आउटपुट मार्केट के हवाले से काम नहीं किया, इससे बियॉन्ड भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम काम करते रहे हैं। फॉरेस्ट्री में हमारा काम है, लाइव स्टॉक सेक्टर में हमारा काम है, मिल्क के ऊपर स्पेशल काम किया गया है। तो एक पर्सपेक्टिव यहाँ से ये डेवलप ना हो कि सिर्फ एग्रीकल्चर की इनपुट या आउटपुट मार्केट तक हमारा जो काम है वो महदूद नहीं है। जहां तक आउटपुट मार्केट की ताल्लुक है तो इसमें पाइड ने गुज़िश्ता 5 वर्षों से और उससे पहले भी सबसे ज्यादा तसलसल से, तवातुर से, भरपूर शिद्दत से और जोर से जिस चीज पर फोकस किया वो था वीट की मार्केट के ऊपर। और उस पर हमारा मौकफ मुसलसल यही रहा कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है एग्रीकल्चर की वीट मार्केट की प्राइस सेट करने में या मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करने में या इस तरह से फार्मर्स को सहूलत देने के सिलसिले में वो तरीक़ेकार ठीक नहीं है, इसको रिविजिट किया जाना चाहिए। पाइड का मौकफ मुसलसल यही रहा इन सालों में कि जो स्पॉट प्राइस है इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसने बहुत सारे बर्डन्स जो हैं वो गवर्नमेंट के शोल्डर्स पे भी क्रिएट किए हैं, और जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ना तो इससे मार्केट में हम अपनी प्राइसेस को स्टेबल करने में कामयाब हो सके इस सारे अरसे में, ना ही जिन स्मॉल फार्मर्स के नाम पर हम ये स्पॉट प्राइस अनाउंस करते हैं उनसे किसका बेनिफिट जो है वो मुकम्मल तौर पर पहुंच पाता है। तो एक तो ये है कि हमने इसमें सारे असेसमेंट की कॉस्ट एस्टिमेट करने की कोशिश की कि ये जो प्रोसीजर
चलता है एक पूरे साल में, इसका गवर्नमेंट पे बर्डन कितना पड़ता है। तो उसके हमने 4 डिफरेंट डायमेंशन से जो है वो इस बर्डन को एनालाइज किया, जो मोस्ट रिसेंटली हमने दोबारा से इसको हाईलाइट किया। इसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रोक्योरमेंट टोटल जो प्रोसीजर है उससे कितना बर्डन क्रिएट होता है। रिसेंट पीरियड का जो बर्डन था वो 167 बिलियन उस प्रोसीजर की वजह से गवर्नमेंट के उसके ऊपर खर्च हो रहे थे, जिसमें 88 बिलियन के करीब जो गवर्नमेंट के शोल्डर्स पे सिर्फ इंटरेस्ट की मद में आ रहे थे। तो जितना इंस्टीट्यूशनल बजट इन्वॉल्व है, जो इस सारे इदारे जो हैं फूड डिपार्टमेंट्स और इस सारे सेटअप को ऑपरेट करते हैं, उसका बर्डन 259 बिलियन के करीब है। ठीक है, इसमें अहम फैक्टर जो ऐड हुआ वो साल हर साल से ऐड होता होता बहुत बड़ा बर्डन बन गया, वो सर्कुलर डेट का है। सर्कुलर डेट जो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ 680 अरब रुपए था, और अगर सारे प्रोविंसेस और ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर हमने इसको मतलब नजर लगाया तो वो 907 अरब के करीब बन जाता है उसका बर्डन। एक फैक्टर जिसको हमेशा से जिस पर बात हमें सुनने में मिलती थी कि कंपीटिंग क्रॉप्स जो हैं वो इससे उनका लॉस होता है, क्योंकि स्पोर्ट प्राइस की वजह से मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है वो वीट कल्टीवेट करते हैं। कंपीटिंग क्रॉप्स पे हमने मतलब प्रॉफिट एस्टिमेट किया तो 5000 पर एकड़ जो है वो कंपीटिंग क्रॉप की प्रॉफिट जो है वो वीट से ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये सपोर्ट प्राइस ना दी जाए और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि सिर्फ वीट ये एरिया से 10% एरिया जो है वो सिर्फ कंपीटिंग क्रॉप्स की तरफ अगर डाइवर्ट हो जाता है, उससे हमारे सिस्टम में 11 बिलियन रुपीस जो है वो ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वीट को सपोर्ट करने से जो कंपीटिंग क्रॉप्स हैं जस्ट 10% एरिया के ऊपर 11 बिलियन रुपीस का जो है वो हम नुकसान जो है वो उठा रहे हैं। तो इस सारे सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 1350 अरब के करीब बन जाती है। तो हम मुसलसल इसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि इसमें से एलिमिनेट होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की चाहिए। एक तो 2023 में बहुत ज्यादा स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की गई, जिस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जस्ट 2400 के अराउंड थी, और स्पोर्ट प्राइस जो है वो 3900 के करीब अनाउंस की गई। उसका मकासद शायद कुछ और थे, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से उसने फूड इन्फ्लेशन को मजीद हवा दी, और इन्फ्लेशन के फैक्टर्स में भी उसका जो है वो एडिशन आया। अच्छा, इसके साथ वीट के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू जो है वो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिसीजंस हैं, जिनके हर साल हम कुछ ना कुछ किसी न किसी डायमेंशन में जो है वो हम सुनते रहते हैं। तो फाइट का मौक़िफ़ ये है कि हम इन क्राइटेरियाज की बेस पे अपनी डिमांड डिटरमिन करते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने क्राइटेरियाज की बेस पे डिमांड डिटरमिन की जा रही है उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, उनमें बहुत बड़ा फासला है। मिसाल के तौर पर नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हमारी नीड्स जो है वो 113 टू 115 किलोग्राम पर पर्सन सालाना है, जबकि नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर के मुताबिक हमारी जरूरियात जो है वो 124 किलोग्राम के करीब है। हाइस का सर्वे कहता है 84 किलोग्राम है। अब बाकी 3 क्राइटेरिया को देखा जाए तो हम शॉर्टफॉल में है, इससे हमारे लिए इंपोर्ट एक जरूरत बन सकती है। हाइस को देखा जाए तो हम एक्सेस वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक असेसमेंट के क्राइटेरियाज को भी रिविजिट किया जाना चाहिए। फाइड ने इसके ऊपर भी मतलब फोकस किया। आउटलुक मार्केट में क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाने पे मजबूर नहीं है। 5 सालों के काम को या इससे तवील काम को दरिया में जो है वो उसको कुएं में बंद करने के मुतरादिफ है। तो 2-3 मार्केट्स पे जिन पे हमने बड़ी शिद्दत से फोकस किया था उनमें मैं हाईलाइट करता चलूं कि डिस्क्रिप्टिव प्राइसेस के ऊपर फाइड ने अपना मौकफ दिया कि ना फ्रूट्स की मार्केट्स में, वेजिटेबल की मार्केट्स में, हर जगह पे डीसीओ ने प्राइसेस सेट करनी है, और वो उसकी ऑप्शन प्राइस के ऊपर 15-20% जो है वो ऐड करके वो प्राइस अनाउंस कर दी जाती है। जबकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रेंट का कॉस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी के और ऑपरेशन के कॉस्ट होते हैं, जो नॉर्मल बियर कर रहे होते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो सेलर हैं मार्केट में, तो उनको शामिल नहीं किया जाता। तो फाइड ने मतलब इस चीज के ऊपर फोकस किया कि जनाब डीसीओ लेड प्राइसेस जो है फ्रूट मार्केट्स में, वेजिटेबल मार्केट्स में, इनको भी खत्म किया जाना चाहिए। थर्ड, हमने कहा कि जनाब एग्रीकल्चर से हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत ज्यादा हम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग ले सकते हैं, हम दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से हैं, हमारे पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल एरिया है जिनसे हम ये सब कुछ प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आउटपुट की साइड पे हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटीज फर्स्ट तो इनसफिशिएंट है, हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं है। सेकंड, इनएडिक्वेट है। थर्ड, आप इसके ऊपर देखें कि इनके दरमियान ना जब हम केपीके और बलूचिस्तान में चले जाएं तो इन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी में डिस्टेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसके ऊपर सोचने की जरूरत है हमें। ग्रेन्स में हमारे लॉसेस जो है वो 10% के करीब हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हमारे लॉसेस 22% के करीब हैं।
तो अगर हम इनको इससे हाफ भी सपोज कर लें तो हमारा इस इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज की वजह से 315 बिलियन रुपीस का नुकसान होता है। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है कि ये जो स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो बेहतर की जाए। सेकेंडली, ड्रेन में जो स्टोरेज है उसमें प्राइवेट प्रिक्योरमेंट की परमिशन नहीं है, इसको ओपन होना चाहिए कि ये प्राइवेट प्रिक्योरमेंट की तरफ जाएं। लास्ट एक मुख्तसर सी बात कि हम अगर अपने ही एवरेज फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है उनको हम अपने ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स तक के बराबर ले जाएं तो हम 1722 अरब रुपया जो है वो इस सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, बहुत माइनर सी चेंजेस के साथ। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो मच डॉक्टर फैसल। इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस तेजी के साथ ग्रो कर रही है उसमें हमारे पास एक वेल फंक्शनिंग एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए विद इन नेक्स्ट 50 इयर्स अगर आप इसको सस्टेनेबल बेसिस पे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके चलते हैं तो ही आप अपनी फूड सिक्योरिटी की नीड्स को जो है वो केटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैनलिस्ट है मिस्टर अजवर। अजवर जो है वो स्टेट कैप्चर्ड रियल स्टेट पे बात करेंगे। स्टेट कैप्चर्ड रियल स्टेट में मैं अजवर से जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि फाइड ने पिछले 5 सालों में क्या थीसिस दिया इसके बारे में, और दूसरा ये कि क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट करें तो हम स्टेट कैप्चर्ड रियल स्टेट जो आपकी लैंड है उसको एक्वायर कर सकते हैं, और उसको किस तरह से आप इसको कमर्शियल यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं, उस कमर्शियल यूटिलाइजेशन में लाने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स होंगे इसके। थैंक यू वेरी मच सोबिया। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो हम स्टेट कैप्चर रियल स्टेट का जो वर्ड है उसे समझ लेते हैं कि ये है क्या। इससे मुराद वो सरकारी जमीन है जो कि मार्केट का पार्ट नहीं है, जिसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, जितनी ये कोई अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा। मतलब इस तरह के ये जो इसका करंट यूज है वो प्रोडक्टिव नहीं है, और इसका जो यूज हो सकता है उस तरफ हम जा नहीं रहे। और ये स्टेट कैप्चर का वर्ड इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कैप्चर्ड की हुई है, और वो की स्टेट के यूज की वजह से, तो हमने इसे स्टेट कैप्चर रियल स्टेट, ये डॉक्टर नदीम ने टॉस किया हुआ है वर्डीएस के लिए, और ये आइडिया भी इवेंचुअली उनका ही था, तो ये उधर से है। अब ये अब जो पाकिस्तान के ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो इवेंचुअली ओरिजिनेट हो रहे हैं जो हमारी एसेट मैनेजमेंट है उनसे, और उसमें ही स्टेट कैप्चर रियल स्टेट भी आता है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी ज्यादा फोकस इस पे हैं कि वो फिजिकल सॉल्यूशंस ढूंढे बजाय इसके कि जो और वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि जो इतनी सिग्निफिकेंट वैल्यू की जमीन पड़ी हुई है शहरों के अंदर, और वो जो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। अब जो स्टेट कैप्चर रियल स्टेट है शहरों के अंदर, वो सिर्फ सरकारी घरों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो या वो जो जमीन है सरकार की वो सिर्फ सरकार घरों के लिए नहीं दे रही, वो जितनी स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं उनके पास भी काफी मिकदार में जमीन पड़ी हुई है जो कि फारिग पड़ी हुई है, या जो इस्तेमाल हो रही है तो वो इस्तेमाल इस तरह से नहीं है कि जो उसका पोटेंशियल है वो डिपिक्ट करे। अब पाइट ने एक स्टडी किया इस्लामाबाद पे जिसमें हमने देखा था कि जो 17,000 के करीब सरकारी घर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। और हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन उन्होंने कोई 1300 एकड़ के करीब एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जिसका हमने अंदाजा लगाया था कि इसकी कीमत कितनी है, तो वो तकरीबन 2,500 बिलियन रुपीज से ज्यादा है। अब ये इतनी सिग्निफिकेंट वैल्यू की जमीन है जो कि लॉक्ड है, और ये वो जमीन है जो कि शहरों के दरमियान में है और जिसका आप कुछ कर नहीं सकते। और ये इतनी वो प्राइम लैंड सरकारी अफसरों के घरों के लिए या इस तरह के किसी यूज के लिए यूज हो रही है। अब एक बात समझने की जरूरत है कि ये जो हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, इस करंट यूज से सिर्फ ये अपॉर्चुनिटीज की कॉस्ट नहीं हम बियर कर रहे, इसकी एक टेंजिबल कॉस्ट भी है, टेंजिबल इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। अब हमारे अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर जो हमने मैप की है वो तकरीबन 2,000 एकड़ के करीब जमीन है जो कि इस्लामाबाद क्लब, ये पार्लियामेंट लॉजेस, मिनिस्टर इनक्लेव, गवर्नमेंट हाउसेज, इन सब के ऑक्यूपाई इन्होंने की हुई है। अब हमारा अंदाजा ये है कि 34% जो हमारी 34% ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान वो इस उस इक्विवेलेंट करंट यूज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब अगर आप इसे, if you're to forego of the current use and you're to use it for purposes that fulfill its potential, तो जो आपके उधर से रेवेन्यू जनरेशन या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो 34% ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान के इक्विवेलेंट, और ये सिर्फ इस्लामाबाद से है, इसका बाकी शहरों के साथ कोई उस तरह से अभी तक लिंक नहीं है। ये अब हम सिर्फ स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं किस तरह आ रही हैं, अब ये बात समझने की जरूरत है। अब देखें, शहर के दरमियान में जब आपके पास जमीन है
और उसका जो करंट यूज है वो एक हाउसिंग के पर्पजेस के लिए, ऑब्वियसली हाउसिंग अल्टीमेटली जरूरत है शहर की, इसे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपके जब आसपास सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो, आपके पास एक लॉट, आप इमेजिन करें आपका शहर के दरमियान में एक लॉट है और उसके आगे पीछे सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और वो लॉट जो है आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, इवन दो कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो इतनी सिग्निफिकेंट है कि अगर उसे उसको रिलीज करके बैंक में रखवा दें, जो सूद आएगा उसका ही मतलब इंटरेस्ट का ही रेवेन्यू मत वो एक अच्छा वाला सिग्निफिकेंट होगा। और ये मतलब बेर मिनिमम है, बेर मिनिमम। अब लेट्स से ये जो जमीन है ये मार्केट का पार्ट बन जाती है और इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इवेंचुअली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, फिर उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी होगी, रेजिडेंशियल एक्टिविटी होगी। पाइट का थीसिस ये है कि हमें ये सारी जमीन वो रिलीज करवा के इसके ऊपर हाई राइज मिक्स यूज कमर्शियल और रेजिडेंशियल कम कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इसे करना चाहिए। अब ये जब सारी एक्टिविटीज होंगी तो उससे आपका रेवेन्यू जनरेशन होगी, टैक्सेशन इंक्रीज होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, डोमेस्टिक सारे हर तरह से होगा। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्टेट, सिटीज और जो सिटीज के लोग होंगे वो होंगे सोसाइटी। इसकी दो मेजर वजूहात हैं, काफी ज्यादा हैं लेकिन दो मेजर हैं। एक तो आउटडेटेड एसेट मैनेजमेंट का जो क्लोनियल एरा वाला वो था, वो हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है। आप रेलवे लैंड की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान रेलवे का जो एक्ट है वो कमर्शलाइजेशन की इजाजत ही नहीं देता। आपको कोई एसआरओज लाने पड़ते हैं, उनके थ्रू आपको कमर्शलाइजेशन करनी पड़ती है। तो आपको पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसके लिए आपको जो आपका जो फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को उसका कोहेरेंट करने के लिए आपको उसे अमेंड करने की जरूरत है। अच्छा, ये रेलवे की सिर्फ एक एग्जांपल है, ये जूनिंग वगैरह सारे ये मल्टीपल इसके आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका है कि जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है इस लैंड का। आप देखिए जो एसिड मैनेजमेंट है ना, वो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। टाइम थोड़ा हमारे पास लिमिटेड है तो मैं दूसरे पार्ट पे आ जाता हूँ कि ये रिलीज कैसे होगा। सबसे पहले तो हमारी जो सजेशन है पाइट की, उसका ये है कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो जिसके अंदर सारी जो स्टेट ओन्ड लैंड है, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए यूज हो रही है, वो मैप हो। दूसरा कि उसकी जो बैलेंस शीट है उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, और वो क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर वो अपॉर्चुनिटीज की भी बात करते हैं कि उसको किन किन पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है, वो उस बैलेंस शीट का पार्ट हो। उसके बाद जो ज्यादातर जमीनें शहरों के अंदर वो प्राइवेट सेक्टर को रिलीज कर दें, या अगर आप एसेट मैनेजमेंट करके भी उसे आप पीपीपी या किसी भी जो भी सरकार समझे कि मुनासिब तरीका है उसके थ्रू अगर वो उसे यूटिलाइज कर ले उसके अकॉर्डिंग जो कि उस जगह और शहर की जरूरत है। और फिर बात आ जाएगी कि ये जो सरकारी मुलाजमीन को दिए गए हुए हैं इनका क्या होगा। तो इनके लिए इसका थीसिस ये काफी पुराना है, पिछले 5 साल से इस पे बात कर रहे हैं कि जितने भी पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं इन्हें मोनेटाइज कर दें। मतलब अभी एग्जांपल ले लें आप, अगर कोई स्टार में स्केल का अफसर है तो उसे हायरिंग की मद में 41,000 के करीब कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो पाइट कह रहा है कि आप इस तरह कर लें कि जो स्टार में स्केल के अफसर के पास घर दिया हुआ है उसे घर ले लें, तो आप उसे मार्केट बेस्ड रेंट की शक्ल में उसे कंपनसेट कर दें। अब आप हमने वो भी एस्टिमेशंस की हुई हैं, वो कैलकुलेशन सॉरी की हुई हैं। उसमें ये है कि वो जो मार्केट बेस्ड रेंट इस्लामाबाद के लिए वो है 71,000 से लेके 1,47,000 तक शायद जाता है। वो ऑब्वियसली मीडियन एवरेज इन सब से कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन स्टेट की वो किस तरह करना चाहे, तो वो वाला एस्पेक्ट भी कवर हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Azwar. Actually, Azwar had a lot of things to tell us, लेकिन we are short of time, तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को concise भी करना था। तो it was a very insightful discussion by Azwar. My next panelist is Abbas, and Abbas will be going to talk about the financial markets. I would ask कि last 5 years में पाइड ने क्या suggestions दी कि financial market की जो inefficiencies हैं उनको किस तरह से हम overcome कर सकते हैं और किस तरह से आप investment जो है वो लेके आ सकते हैं। तो over to Abbas. थैंक यू डॉक्टर सोबिया। तो पाइड ने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की हुई है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर ओवर द पास्ट 5 years। और स्पेशली हम अगर फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं तो द फर्स्ट क्रिटिकल थिंग टू एक्नॉलेज इज द फैक्ट कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन रिमेन्स फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड। तो लाइक इफ यू लुक एट फाइनेंशियल मार्केट्स, तो अगर एंड इफ यू लुक एट द स्टेट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, तो बेसिकली at least half of the people in the country have broadband access, and more than 100 million people have internet access in general. Or but despite
such a huge number of people having access to internet and access to broadband, इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि 85% से ज्यादा जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है that remains financially excluded. इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो the vast majority of our population is it remains outside of formal banking channels, और दूसरी इसकी बहुत बड़ा रीजन ये है कि देयर इज अ वेरी वेरी लो लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन द कंट्री। और उसके साथ साथ जिस तरह पहले भी मेंशन हुआ इन द सेशंस दैट केम बिफोर कि पाकिस्तान की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज बेसिकली डोमिनेटेड by either state-owned firms or state-owned firms. अगर हम सिर्फ family-owned businesses की बात करें, we see that more than 2/3 or at least 2/3 or 64% of the businesses in Pakistan are actually owned by families, जो कि नए investors को it basically hinders them from entering the market, and it also leads to it also actually exacerbates the risk of insider trading. और उसके साथ साथ वो ओवरऑल जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी है उसको भी एक तरह से इट causes it sort of depresses it. अच्छा, मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ साथ क्योंकि these two markets in my opinion were intimately interlinked, so I also looked at domestic commerce कि what is the state of domestic commerce. और डोमेस्टिक कॉमर्स की जब बात करते हैं तो वी सी कि more than half of the country's output can be attributed to the domestic commerce sector, with 1/3 of our population being employed in the sector. So basically अगर हम उसकी importance की बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद domestic commerce is actually the second largest employer in the entire country. लेकिन इसके बावजूद जो vast majority of domestic commerce है that actually remains dominated by your formal economy. और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि आपकी जो the vast majority of your population is not part of any kind of formal financial systems. और उसके बाद अगर आप डोमेस्टिक कॉमर्स में बात करें तो यू सी के वहां पे भी जस्ट लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स वहां पे भी बहुत ज्यादा मार्केट कंसंट्रेशन है। विद फॉर एग्जांपल 3 cities कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में आप देखते हैं कि हाफ ऑफ योर रिटेल चेन स्टोर्स फॉर एग्जांपल आर लोकेटेड ओनली इन 3 cities एज अपोज टू कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पे बहुत ज्यादा टियर 2 टियर 3 सिटीज में उनकी डोमेस्टिक कॉमर्स जो है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। और उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स के लो एंट्रेंस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वी हैव अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स taxation system. So for example, and this is also linked with the domestic commerce. For example, if you look at the law which the Indian Parliament passed in 2017, जिसमें उन्होंने basically अपने goods and services tax को basically simplify किया था, we see research after that, even though like a lot of time hasn't passed since then, but research after that has shown कि जो उनकी within India trade थी या जो उनकी domestic commerce थी and trade across Indian states actually increased exponentially. So maybe if we implement similar taxation regime in Pakistan, जो कि sort of uniform हो, streamlined हो, that would definitely encourage more people to become part of our financial system. That will also spur the domestic commerce activity. उसके अलावा अगर हम specifically financial markets की बात करें तो we need to streamline the IPO processes in our country. उसके अलावा सबसे एक बहुत बड़ा जो challenge लोगों को generally face होता है when they try to participate in the stock market is the fact कि आपके पास diversified financial instruments नहीं है. So for example, countries like Malaysia, Indonesia, they generally have Islamic bonds, and simultaneously they have I'm just wrapping up, and simultaneously they also have well functioning derivative markets. तो ये बहुत जरूरी है कि हम derivative markets को जो है एक ऐसी environment create करें which is conducive for the growth of derivative markets, and we also provide mutual funds and bonds which would basically spur activity in the financial market. I actually had a lot more to say, but since we're running short on time, so thank you. थैंक यू सो मच अब्बास। एक्चुअली कहानी बहुत बड़ी है और उसको इस थोड़े से टाइम में समराइज करना और यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है। तो बट मेरी एक मैं दाद दूंगी इन पैनलिस्ट को कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज को इतने छोटे से टाइम में यहाँ पे आके प्रेजेंट किया आप लोगों के लिए। तो हमारी लास्ट पैनलिस्ट है आज की मिस आफिया। शी इज ऑनलाइन, शी इज एक्सपर्ट इन एनर्जी एंड शी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनर्जी मार्केट इरेगुलरिटीज। और मैं मिस आफिया से चाहूंगी कि वो ये डिस्कस करें कि हम किस तरह से एनर्जी सेक्टर, एनर्जी की मार्केट को किस तरह से ज्यादा कंपेटिटिव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, थैंक यू सो मच। बस मैं छोटा सा जल्दी से ब्रीफली सब बस इतना सा कह दूं कि लास्ट 5 इयर्स में जो पाइट का जो फोकस रहा है ना वो यही है, क्योंकि सबको पता है कि बहुत डीप स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा मैस है सेक्टर में। तो हमारा यही था कि बहुत सारे आइडियाज नए जनरेट हुए, लेकिन फोकस यही था कि किसी तरह से मार्केट फोर्सेस को जो है अहमियत मिलनी चाहिए और जो गवर्नमेंट का जो रोल है उसको मिनिमाइज किया जा सके।
और गवर्नमेंट का रोल मिनिमाइज करने की जब बात की जाती है तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जी प्राइवेटाइज कर दें। तो पाइट ने कहा कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना बल्कि हमें कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए कि कंपनीज को आप एम्पावर करें कि वो खुद अपने डिसीजंस ले सकें और खुद वो डिसाइड करें कि उन्हें फ्यूचर में किस तरह से जाना है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट करनी है तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट इस तरह से होगी कि थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि उनको आप स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाएं, वहां लिस्ट करें और वहां से उनके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जो है हमने इतनी ढेरों से एंटिटीज बना दी गई हैं, उनको खत्म करने की जरूरत है। एक इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत है। इसमें भी पाइट ने बहुत ज्यादा काम किया और बताया कि पाइट का ये भी थीसिस रहा कि एक हमारे पास इफेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, ना कि इतनी सारी हमें लंबी लाइन जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज की बनी हुई है होनी चाहिए। बहुत बात होती है कि आईपीपीज की। पाइट ने कहा कि आईपीपीज का जो मोड है इसको खत्म किया जाए और मार्केट कंपेटिटिव मार्केट की तरफ जाए, और फिर मार्केट डिसाइड करे कि जो भी हमें नई कैपेसिटी लानी है और किस एनर्जी सोर्स की आनी है, उसका क्या टैरिफ होगा, ये सारी चीजें जो है मार्केट में डिटरमिन होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस आखिर में ब्रीफली सिर्फ इतना सा ऐड करूंगी कि पाइट का जो था फोकस, वो हमेशा से उस थोड़ा सा डिफरेंट रहा बाकी जगहों से। कि पाइट की कोशिश ये रही कि हम ज्यादा से ज्यादा, डॉक्टर नदीम का ये हमेशा से आइडिया था कि लोगों के साथ एंगेज किया जाए, डिबेट की जाए, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए और उसके बाद फिर किसी भी पॉलिसी पे हम पहुंच सकें। तो द लास्ट 5 years हमने डॉक्टर नदीम के गाइडेंस में सिर्फ इसी चीज को मलूज़े खातिर रखते हुए हमने बहुत ज्यादा इस पे जो है वेबिनार्स करवाए, लोगों से डिबेट्स की, हमने पावर कमीशन बनाया और उसके बाद फिर हमने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आए पावर सेक्टर के लिए भी और बाकी एनर्जी के सोर्सेज के लिए भी। दिस इज ऑल ब्रीफली। थैंक यू सो मच, सोबिया। Thank you so much, Ms. Afia.